सर फोन आहे दाखवाय ना एक मिनिट on the diet, please attend on match number 2, 3 and 4 immediately. Coaches and managers are requested after wrestlers to honor is given to all, being given to all the dignitaries. Being jointly organized by Salibari University today. Guard honor is being given to all the dignitaries over here. All the students are informed to sit in the balcony seats because the seats are actually chairs are actually guard of honor is being given to the dignitaries. The flag hoisting ceremony is being done. The flag of University of Salibari University is being hoisted by your students and of dignitaries. The flag hoisting ceremony is being conducted by all the dignitaries present over here. All towards the stage with very honor and respect. The dignitaries are approaching towards the stage. But before that, they are going to lighten the torch, which is actually visible at night. The torch is being lit by सर थोड़ा सा सर थोड़ा क्रॉस है all the dignitaries, respected guests, as well as international players who are present here, है ना as well as the most important and very 2000 balloons. क्रॉस है ना सर थोड़े से मोबाइल सामान सगळे दिसत नाही all the dignitaries. 2,000 balloons are being released in the air. These 2,000 balloons are in the symbol of 2,000 participants who are actually present here, who are present here. And these balloons will grow higher and higher as the careers and success of all the players will be day by day. आदरणीय महानुभावों की उपस्थिति में सभी भारतीय महिला पुलिस प्रतियोगिता की आसान जागृति की जा रही है और Please give them huge round of applause. This championship itself is Machals are handed over to the students, volunteers.
आत्मा So they are going to march towards the stage. आहे मग मोबाईल घालताय राव आम्ही जाऊन थांबतो बाजूला तुम्हीच मशाल होल्डर्स are Rajesh Bharati, घेऊन जावा आमचा Vaishnavi Chavale and those riding. आम्ही कसं काय बघ And all the dignitaries are marching towards the stage. Our dignitaries are taking all these dignitaries towards, they are marching towards the stage. They are taking them to with great respect and honor. सर्वच मान्यवरांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होत आहे. जोरदार टाळ्या आपण वाजवूयात. सर्व अतिथी मान्यवरांचं आगमन अगदी काहीच क्षणामध्ये मुख्य कार्यक्रमस्थळी होत आहे. All are requested to give them a huge round of applause. Thunder of claps should be there. आदरणीय अतिथि तथा गणमान्यों का आगमन मंच की तरफ हो रहा है. सभी अतिथियों का स्वागत. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. These three torches are actually the symbol of women empowerment. The first one, which is birthplace of Ahilya Bai Holkar. Second mission is actually arrived from Russian Jagdamba temple, the goddess Jagdamba, which is actually the symbol of the women empowerment. And the third torch is actually representing the home motherland of Karzan. So all these three torches are किया गया है जो कत्ल के भावभीनी तथा कत्ल के नजदीकी गांव चौंडी और राशि से लाई गई है. यह मशाले स्त्री शक्ति का प्रतीक है और अर्थात यह कुश्ती प्रतियोगिता स्त्री शक्ति का विस्तार माना अख्खा फ्रेम मध्ये जागा ठेवा दोघं जागा ठेवा citizens and dignitaries, respected guests who are present over here, all are requested आता सर to give them थोडी जागा ठेवा. a round of applause for all the dignitaries who are present over here on this great occasion of All India Inter-University Women's Wrestling Championship, which is being organized jointly by Savitribai Phule Pune University Pune and Raj Shikshan Sanstha's Dada Patil Mahavidyalay Karjat. All are welcome on this great occasion of All India Inter-University Women's Wrestling Championship. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूयात. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने रयत शिक्षण संस्थेचं दादा पाटील महाविद्यालय कर्जत अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ महिला कुस्ती स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त उपस्थित असलेल्या सर्वच मान्यवरांचं. All the dignitaries are requested to lighten the torch as well as worship the holy images of Karmavir Bhaurav Patil, Padma Bhushan Dr. Karmavir Bhaurav Patil, founder of the Raj Shikshan Sanstha, as well as Dalit Mitra Dada Patil. And the symbol of power, God Hanuman. So very soon, all the dignitaries will शक्तिपीठ ही ठरते आहे. शाहू फुलांचे समान देसे तत्व मानसी मूर्ते आहे. स्वावलंबी वृत्ती ठेवून ज्ञान साधना करतो आहे. रयते मधून So, once again, I would like to welcome all the dignitaries, referees, coaches, team managers, and all players on this great occasion of All India Inter-University Women's Wrestling Championship 2022-23, which is being jointly organized
by Savitribai Phule, Pune University, Pune, and Rayat Shikshan Sanstha's Dada Patil Mahavidyalay, Karzat. Ladies and gentlemen, welcome once again on this great historical event in Karzat. Thank you so much. Next. अखिल भारतीय अंतर विद्यापीठ महिला कुश्ती प्रतियोगिता में अभी मौखिक स्वागत संपन्न होगा। रयत शिक्षण संस्था के मैनेजिंग काउंसिल सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी फाल्के साहब से अनुरोध है कि वे गणमान्य व्यक्ति तथा अतिथियों का स्वागत कर अपना मनोगत व्यक्त करें। Good morning, everyone. Namaste. Respected dignitaries on and off the stage, I heartily welcome you all in this All India Inter-University Women's Wrestling Championship, which is jointly organized by Savitribai Phule, Pune University and Rayat Shikshan Sanstha's दादा पाटिल महाविद्यालय कर्जत अहमदनगर। इस अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर संजीव सोनवणे जी, शारीरिक शिक्षण विभाग के निदेशक Dr. Deepak Mane ji, I warmly welcome observer of this wrestling championship, Honorable Rajendra Singh Khatri ji, who travel all the way from Rajasthan to perform his duty. I also take this opportunity to welcome our prompt and able leadership of Karzat Jamkhed constituency, Honorable Rohit Pawar ji, the proud host of this wrestling championship, who have sacrificed his day and night for the effective planning of this championship through his attentive team, particularly Mr. Sanjay Saste and his team. रयत शिक्षण संस्था के सभी पदाधिकारी, मेरे कलीज अंबादास जी पिसाळ, बप्पा जी धांडे, विजयनाना मोडळे, राजेंद्र गुंड, बाळासाहेब जी साळुंके, मधुकराबा राळेबाग, यहाँ उपस्थित सब प्रधानाचार्य, देश के अनेक राज्यों के विश्वविद्यालय से आए हुए महिला पहलवान, उनके संघ प्रबंधक, निदेशक, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय नगरकर, जिन्होंने स्पर्धा लेने का तय किया, वो इस महाविद्यालय के फिजिकल डायरेक्टर डॉक्टर संतोष भुजबल, जिस सिटी में आज आप सब मेहमान आए हैं, उस कर्जत नगरी क्या प्रेसिडेंट ऑफ द नगर पंचायत सो उषाताई राउत, यहाँ उपस्थित अध्यापक, शिक्षकेतर सेवक, छात्र और सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का रयत शिक्षण संस्था और दादा पाटिल महाविद्यालय का प्रतिनिधि के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। Dear friends, women empowerment brings the attention of the scholars. Nowadays, we as a management of Rayat Shikshan Sanstha Satara
the largest educational institute in Asia, behold the deep concern for empowering women. Very humbly, I would like to bring to your notice the heartfelt contribution of Lakshmibai Bhaurao Patil for the foundation, quality, enhancement and expansion of this institute. Another milestone, the legend Kranti Jyoti Savitribai Phule, whose revolutionary contribution has uplifted women's education in progressive Maharashtra state. I sincerely salute to their work. Here I would like to trace the contribution of the ladies of the ring. Chetna Sharma, Sakshi Malik, Jinsi Jose, Karishma Kapoor, Parampreet Kaur, Madhura Hassan, and so on. The legendary wrestler Vinesh Phogat, who bagged 2 golden medals in the championship and put the records in the history. महाराष्ट्र के पहलवानों ने महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी और ओलंपिक प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं और अपनी पहचान बनाई है। मेरे इलाके से कर्जत से वी प्राउड हर शबनम शेख, कोल्हापुर से रेशमा माने, पुणे से कोमल और मनीषा द्विवेदी, इन महिला पहलवानों ने कुश्ती क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। जिला सातारा के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान खशाबा जाधव आज भी सभी के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत है। माननीय पद्म भूषण खासदार शरद चंद्र जी पवार साहब, जिन्होंने कुश्ती खेल को प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक प्रयास किए, पहलवानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र केसरी पहलवानों को पेंशन योजना शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुश्ती खेल के प्रचार एवं प्रसार के साथ इस पारंपरिक खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कार्यों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन लेकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र अंतर्गत रयत शिक्षण संस्था के दादा पटेल महाविद्यालय कर्जत में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महिला कुश्ती प्रतियोगिता लेने का महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता से इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज स्कूल की अनेक लड़कियां प्रभावित होगी और प्रेरणा लेगी। मैं पुनः एक बार इस अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में उपस्थित मान्यवरों का, अभिभावकों का स्वागत करते हुए महिला पहलवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। So here is going to be dangal, and I welcome you all one again in this championship to enjoy the each and every moment of this event. My team will stand on the short call to you on toes during this championship. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्मवीर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आप सभी गणमान्यों ने यहाँ उपस्थित रहकर इस समारोह में उत्साह भर दिया है। इन सभी मान्यवरों की ओर से महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूंगी, हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो।
हौसलों के तरकीश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे मुकाबला, मगर फिर से जीतने की वह उम्मीद जिंदा रखो। धन्यवाद। आदरणीय दीपक माने, निदेशक खेल एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे, सर आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रतियोगिता का परिचय कराएं। आदरणीय दीपक जी। Good morning, everybody. On behalf of Savitribai Phule Pune University, I first of all warmly welcome you all in the town of Karjat, district Ahmednagar, Maharashtra, for participating for the All India Inter-University Wrestling Women Championship 2022. The dignitaries on the dais for this today's function, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Sanjeevji Sonavne, the leadership who has taken a lot of pains in making this function a real memorable event, dear and Honorable Rohit Dada Pawarji, गोळे, शबनमताई शेख, मनीषाताई देवेकर, स्वातीताई शिंदे, नेहाताई चौगुले, त्याच्याच बरोबर या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये अनेक युवती आहेत ज्या महाराष्ट्राच्या आहेत, ज्या कर्जत तालुक्याच्या आहेत, पण त्या स्पर्धेमध्ये असल्यामुळे त्यांचं नाव या ठिकाणी मी घेत नाही. पण आपण सर्वांनी मिळून खरंच आम्हाला या ठिकाणी अभिमान त्या ठिकाणी दिलेला आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे राजेंद्र तात्या फाळके, संजयजी नगरकर सर, या ठिकाणी उपस्थित असणारे बप्पाजी पिसाळ, तसंच बप्पाजी भाऊ दांडे, बाळासाहेबजी साळुंके, संतोषजी भुजबळ, कनेरकर सर, तापकीर सर, उषाताई राऊत, शिवाजी भाऊ दांडे, सय्यद सर, रोहिणीताई गुले, तसंच काकासाहेब तापकीर, नामदेव बापू राऊत, राजेंद्र भाऊ कोठारी, मधुकर आबा राळेबाग, सुभाषचंद्रजी तनपुरे, गुलाब काका तनपुरे, प्रतिभाताई बैलुमे, ऋषिकेशजी दांडे, विजयनाना मोडळे, दत्ताभाऊ मादम, तसंच दिनेशजी गुंड, सोनमाळीताई, सुनीलजी शेलार, विशालजी मेहते, इथं उपस्थित असणारे सर्वच पदाधिकारी, कार्यकर्ते, या संस्थेचे सर्व शिक्षक, पदाधिकारी, सामाजिक संघटनेचे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, इथं आलेले सर्व कोच, विविध युनिव्हर्सिटीचे पदाधिकारी, शिक्षक, पालक, पत्रकार, तसंच ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतला असे या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व आमचे विद्यार्थी आणि खेळाडू भगिनी, या कार्यक्रमाला आणि इथं योग्य असं नियोजन व्हावं त्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला असे सर्व डॉक्टर्स असतील, फोटोग्राफर्स असतील, मंडपचं नियोजन ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला या सर्व मॅट्स या दिल्या, यांचं सगळ्यांचं मनापासून मी या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर हा कार्यक्रम आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण पवार साहेबांना या ठिकाणी येता आलं नाही, पण त्यांनी मनापासून आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा या दिलेल्या आहेत. या कार्यक्रमाचं नियोजन करत असताना खूप टेन्शन होतं. कसं करायचा, चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम कसा त्या ठिकाणी होईल, यासाठी आम्ही खरं तर सोनवणे सर असतील, माने सर असतील यांना सांगितलं की आम्हाला परवानगी द्या, तर त्यांनी आमच्या वतीने त्या ठिकाणी पाठपुरावा केला. नगरकर सर, भुजबळ सर असतील, तात्या असतील,
यांनी सुद्धा एक इच्छा व्यक्त केली होती की हा कार्यक्रम या ठिकाणी व्हावा आणि त्यासाठी मग आम्ही सर्वांनी पाठपुरावा करून कार्यक्रम आणि या मॅचेस. पण जेव्हा आम्हाला कळालं की या मॅचेस या ठिकाणी होणार आहेत, त्याची परवानगी त्या ठिकाणी मिळाली, तर काही प्रमाणात आमचं टेन्शन वाढलं. टेन्शन वाढण्याचं कारण असं की ग्रामीण भागामध्ये आपलं हे कॉलेज आहे आणि या भागामध्ये आपण जर बघितलं तर आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी नाही. इथं 2000 मुली या अख्ख्या देशातून आपल्या या कर्जत शहरामध्ये, कर्जत तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी आलेला आहे. मग याचं नियोजन योग्य पद्धतीने व्हावं यासाठी नगरपंचायत कर्जत, दादा पाटील महाविद्यालयाचा पुरा स्टाफ, पुणे युनिव्हर्सिटीचा पुरा स्टाफ, इथं बसलेले सर्व कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते सगळ्यांनी त्या ठिकाणी मदत केली. माझी टीम असेल, मी व्यक्तिगत कार्यकर्ता म्हणून त्या टीम मध्ये त्या ठिकाणी सहभाग घेतला. म्हणून आज इतिहासामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही स्पर्धा होती आणि ती स्पर्धा होत असताना ती स्पर्धा आपल्या कर्जत मध्ये होती. त्याचा अभिमान त्या ठिकाणी माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधी खूप मोठा आहे. यहाँ पे जो सब स्पोर्ट्समैन जो आए हैं, उनके जो कोचेस हैं, उनका मैं बहुत मन से यहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूं. यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खास आपके लिए हम सब ने मिलकर यहाँ पे बनाया है. ये कॉलेज ग्रामीण एरिया में कॉलेज होने के कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमतरता थी, पर हम सब मिलके आप सबको कोई तकलीफ यहाँ पे न हो इसलिए हमारा 100% देने का हमने प्रयास यहाँ पे किया है. थोड़ा बहुत अड़चन आप सबको आएगा, लेकिन आप उसको समझ लोगे ऐसा हम यहां पे समझते हैं. आप सबको इस कॉलेज के बारे में 2 शब्द मुझे बताने हैं. ये कॉलेज जहां पे ये कंपटीशन हो रही है, ये ऑलमोस्ट 60 साल पहले ये कॉलेज की शुरुआत हुई थी. इसके लिए दादा पाटिल साहब ने बहुत प्रयत्न किए थे. और सबसे बड़ी बात, आज ये संस्था जिसपे ये कंपटीशन हो रही, यहां पे आज तक 67,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. अगर ये संस्था यहां पे नहीं होती तो शायद इसमें से 90% लोगों को अच्छी एजुकेशन वहां पे नहीं मिलती थी. इसलिए ये संस्था यहां पे होने के कारण ऑलमोस्ट 70,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है. आप सबको और एक चीज बतानी है, ये संस्था जिस पेरेंट संस्था में आती है उसको रैयत शिक्षण संस्था बोलते हैं. और ये रैयत शिक्षण संस्था जो है वो एशिया में सबसे बड़ी एजुकेशन की संस्था है. इसमें 4.5 लाख बच्चियां वहां पे पढ़ती है और इसमें 16,500 टीचर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है इस संस्था में वहां पे पढ़ाते हैं. इसमें 438 स्कूल्स है. उसमें किसानों के बच्चों के लिए 17 स्कूल्स है, खास शेती शाला, 80 हॉस्टल्स है और उसमें से 29 सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल्स है और 8 ये आश्रम शाला है. इसलिए ये जो संस्था है उसका महत्व बहुत बड़ा है. और ये संस्था अगर महाराष्ट्र में नहीं होती तो महाराष्ट्र में शैक्षणिक जो प्रगति है, जो एजुकेशन प्रगति है, वो आज नहीं होती थी. इसलिए ये कंपटीशन जिस जगह पे हो रहा है उसका महत्व आप सब जान लो. और आप सबको विनंती है, ये कार्यक्रम जिस संस्था के कारण यहां पे हो रहा है, रैयत शिक्षण संस्था, उसका महत्व भी आप सब जान लो. क्योंकि इस संस्था की जब शुरुआत हुई थी
तब कर्मवीर भाऊराव अन्ना के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनका विचार अच्छा था। उस टाइम पे बहुत सिलेक्टिव लोगों को एजुकेशन मिलता था और 95% जो लोग थे वो एजुकेशन से बहुत दूर रहते थे। लेकिन कर्मवीर भाऊराव अन्ना ने एक विचार लोगों के सामने लाया। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई ने उनको सपोर्ट किया। उनके पास जो भी ज्वेलरी थी उस टाइम उन्होंने गिरवी रख के जो पैसा आया उससे पहली स्कूल चालू हुई। और पहली स्कूल वहां से जब चालू हुई तो दानशूर लोगों ने उनको मदद वहां पे की, एक अच्छे भावने से मदद की। और आज अगर देखें तो हर साल 4.5 लाख बच्चे इस संस्था में वहां पे पढ़ते हैं। इसलिए ये जो इवेंट, ये कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किए, आप सबको विनती है कि इसको सिर्फ कंपटीशन मत समझो। इसके पीछे जो विचार है, जो ताकत है, जो त्याग है, उस बारे में भी आप सब सोच लो, ऐसा विनती मैं यहां पे आप सबको करता हूं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे महाराष्ट्र में जिन्होंने क्रांति की अनेक लोग थे। उसमें से जो महिला शक्ति है उसका प्रतीक करके यहां पे जब सब 4 व्यक्तियों के फोटो हमने यहां पे लगाए हैं, जिसको हम स्त्री शक्ति कहते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, अगर आपको उनके बारे में मालूम नहीं होगा, जो मालूम होगा शायद, थोड़ा सा जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आपके मोबाइल पे जाके यहाँ पे जो फोटो लगाए हैं उनके थोड़ा सा आप गूगल करो या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो बच्चियां हैं जो कर्जत के, उनसे आप बातचीत करो और इनका काम क्या था, उन्होंने क्या कार्य किया, ये थोड़ा सा आप जान लो। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया उसके बेसिस पे ही ये महाराष्ट्र खड़ा है, उनके बेसिस पे ही ये अखा इंडिया वहां पे खड़ा है। जिनमें राजमाता जिजाऊ उनका नाम आता है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर। यहां पे जो 3 ज्योत आपको दिखती है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर का जो जन्म जगह है, जो गांव है चोंडी, यहां से बहुत पास में आता है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहां से यहाँ के एनएसएस के जो स्टूडेंट्स है, ये विद्यार्थी है, उन्होंने उनके यहाँ का जो मंदिर है वहां से वो ज्योत यहाँ पे लाई है, एक स्त्री शक्ति का प्रतीक करके। और हमारे राशन की देवी जिनको हम माई कहते हैं, उस मंदिर से भी एक ज्योत हमने यहाँ पे लाई है। और कर्जत जामखेड का एक प्रतीक करके, जो लोगों का प्रतीक है, इन लोगों में ताकत है। ये लोगों यहाँ पे पुरुष हो, स्त्री हो, नई जनरेशन हो, वडीलधारी हो, इस सब का ताकत का एक प्रतीक का एक ज्योत यहाँ पे कर्जत और जामखेड का एक प्रतीक करके हमने यहाँ लाई है। वैसे ही त्याग मूर्ति रमा माई हो, ज्ञान ज्योति फातिमा शेख हो या ज्ञान ज्योति लक्ष्मीबाई पाटिल हो, इन सब का महत्व बहुत है। इसलिए आप अगर महाराष्ट्र में आए हो तो इन सब का महत्व क्या है आप वो सब समझ लो। और दूसरी बात, कुश्ती के बारे में मैं आपसे क्या कहूंगा, कुश्ती जो मल्ल विद्या है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, यह आप सबको मालूम है। और आप उस क्षेत्र के होने के कारण उसके बारे में मैं ज्यादा बोल के आप सबका टाइम नहीं लूंगा। लेकिन जिनके वाढ दिवस निमित्त, जन्मदिन निमित्त हमने ये जो कार्यक्रम यहां पे लिया है, उनके बारे में एक 4 शब्द आप सबसे कहूंगा। एक तो पवार साहब ये राज्य के मुख्यमंत्री अनेक टाइम रहे हैं, और जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस कंट्री का पहला महिला आयोग, जिस आयोग के कारण आज महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति इंडिया में मिलती है,
इस देश का पहला महिला आयोग कहां पे बना था, तो ये महाराष्ट्र में बना था और आदरणीय पवार साहब के मार्गदर्शन के अंदर वो बना था 93 में। उसके बाद पूरे इंडिया में उसको एक्सेप्ट किया गया और पॉलिसी करके पूरे इंडिया को वो लागू हुआ था। दूसरी बात, आप सबको कितना मालूम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदरणीय पवार साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने डिफेंस में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तब तक महिलाओं को वहां पे संधि नहीं दी जाती थी। महिलाओं को प्लेन उड़ाने की संधि नहीं दी जाती थी, आर्मी में आने के लिए संधि नहीं थी, नेवी में नहीं थी। लेकिन पवार साहब जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने महिलाओं का आरक्षण डिफेंस में पहली बार उन्होंने वहां पे लाया था। दूसरी बात, महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत बहुत बड़ा काम ये हर राज्य में होता है, लेकिन पहले महिला और बाल कल्याण के लिए अलग विभाग नहीं होता था। लेकिन महाराष्ट्र में पहला विभाग महिला बाल कल्याण पवार साहब ने बुलाया और उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने उनको स्वीकार किए। उस राज्य में महिला और बाल विकास विभाग वहां पे चालू हुआ था। दूसरी बात, जैसे आरक्षण महिलाओं के लिए डिफेंस में दिया गया, वैसे पहले पॉलिटिक्स में आने के लिए और जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे कि जिला परिषद हो, नगर परिषद, नगर पंचायत हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे नगर सेवक है जहां पे ये कंपटीशन हो रहा है नगर पंचायत के, उसमें मेजॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व जो कर रही है सब महिलाएं, ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और उनको यहां पे जो संधि मिली तो आदरणीय पवार साहब ने पहली बार ये जो सब संस्था होते हैं पॉलिटिक्स में आरक्षण महिलाओं के पवार साहब ने इंडिया महाराष्ट्र में लाया था। उसके बाद फिर बहुत सारे राज्यों ने वो एक्सेप्ट किया और बहुत सारे राज्यों में महिलाओं को वहां पे पॉलिटिक्स में स्थानिक स्वराज्य संस्था के माध्यम से वहां पे उनको संधि मिलना चालू हो गया। दूसरी बात, पहले महिलाओं को कभी भी जो भी उनकी पिताजी हो या ग्रैंडफादर हो, उनका जो भी प्रॉपर्टी था उसमें ऑफिशियली उनको हक नहीं होता था, वो हक सिर्फ बेटे को होता था। लेकिन महाराष्ट्र का पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को अपने पिताजी के संपत्ति में समान हक वहां पे दिया और ये जो पॉलिसी है जो महाराष्ट्र ने पहली बार लाई थी वो पूरे इंडिया में वहां पे वो एक्सेप्ट हुई थी। बचत गट वगैरह बहुत सारे विषय, लेकिन ये सब आप जान लो कि रेट के अभी जो अध्यक्ष है वो आदरणीय पवार साहब है। पवार साहब को कुश्ती बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कुश्ती के लिए बहुत सारी ताकत देने का प्रयास 60 सालों से उन्होंने किया है। उसी के साथ उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। इंडिया में आईपीएल किसने शुरू की तो वो आईपीएल आदरणीय पवार साहब ने इस इंडिया में चालू किया। उसके माध्यम से जो भी एक्स क्रिकेटर है, जो भी एक्स कोच है, उनको वहां पे पेंशन उन्होंने चालू की। और आप सब कुश्ती में से हो तो महाराष्ट्र में पहली बार राज्य सरकार के माध्यम से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो या महाराष्ट्र केसरी जिन्होंने जीती है उनको पेंशन ये महाराष्ट्र में पहली बार वहां पे चालू हुई। इसलिए उनके जन्मदिन के निमित्त में हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे लिया है और इस कार्यक्रम के लिए और इस कंपटीशन के लिए बहुत जन ने हमको मदद की है। तो आप सब के बिहाफ जिन्होंने हमको यहाँ पे मदद की उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूं। और उसी के साथ ये जो कंपटीशन है 3 दिन चलेगी, उसमें हमने जो जो अच्छा आपको दे सकते हैं उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। यहाँ पे वॉलंटियर्स है,
एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया है। महाराष्ट्र पुलिस और उनके जो सब अधिकारी और कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, उन्होंने भी आप सबके सिक्योरिटी के लिए मदद की है। पुलिस मित्र है, उन्होंने आप सबके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी की वाके सपोर्ट किया है। सब व्हॉलेंटियर्स आप सबके सिक्योरिटी के लिए है। आणि मी इथं असणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांना, सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो, पुढचे 4 ते 5 दिवस ही स्पर्धा या ठिकाणी होणार आहे। आपल्या घरी या सर्व भगिनी या अख्ख्या भारतातून या ठिकाणी आलेल्या आहेत, त्यामुळे आपली जबाबदारी खूप मोठी आहे। खरं तर हा मान सहसा शहरामध्ये दिला जातो आणि हा आजपर्यंत महाराष्ट्राला कधी मान त्या ठिकाणी मिळाला नव्हता, पण आपण मोठं धाडस केलं। पुणे युनिव्हर्सिटीने त्यासाठी खूप मोठा पाठपुरावा केला, म्हणून ही स्पर्धा आता आपल्या या कर्जत शहरामध्ये त्या ठिकाणी होतीये। त्यामुळे जेव्हा ही स्पर्धा आपल्या घरी होतीये, हे आपलं सर्व जर घर आहे आणि हे सर्व आपले पाहुणे आहेत, त्यामुळे यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची त्या ठिकाणी आहे। त्यामुळे सेफ्टी असेल, सिक्युरिटी असेल, जी काय सेवा त्या ठिकाणी आपल्याला द्यायची असेल ती त्या ठिकाणी आपण देऊया। पण कुठलीही अडचण असली तर फक्त मी एकटा त्या ठिकाणी जबाबदार नाही, कारण मी एकट्याने ही स्पर्धा घेतली नाही, ही स्पर्धा आपण सर्वांनी या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि आपल्या सर्वांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे। आपला प्रयत्न असा होता, एक तर पवार साहेबांचा वाढदिवस होताच, पण जी गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत कधी घडली नाही ती आपल्या कर्जतमध्ये घडावी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये घडावी आणि त्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांना पुढाकार घेता यावा, म्हणून हा पुढाकार त्या ठिकाणी आपल्याला घेतला। आणि याच्या मागे अजून एक हेतू आहे, हे 2000 विद्यार्थी काही महाराष्ट्रातले आणि विविध राज्यातून या ठिकाणी आले आहेत। त्याच्या मागे एकच प्रयत्न है कि आपल्या कर्जतची ताकत, जो भी जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है, इसका एक मेरे ख्याल से महत्व यह है कि ये महिलाओं की कुश्ती स्पर्धा है, उसमें महिलाओं के कुश्ती के बारे में जो माहौल बनेगा ये कई पैसों में नहीं गिना जाएगा। हर एक लड़की के या महिलाओं के या हमारी जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में कुश्तियों के बारे में अभी समझो कि उनका एज चला गया, तभी वो जब उसे लड़की होगी तो वो सोचेगी कि मैंने उस वक्त ये स्पर्धा मैंने देखी, वहां मैं मेरी बेटी को कुश्तीगीर बनाऊंगी। तो ये जो बहुत लंबा समय का जो सोच है इस स्पर्धा से पैदा होगा। फिर एक बार मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और स्पर्धा तो शुरू अभी होनी चाहिए। इस स्पर्धा के लिए जो भी महिला पहलवान यहाँ आए हैं, हमारे खत्री जी भी यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं, उनके कोचेस है, मैनेजर्स है, मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और दादा पाटिल महाविद्यालय के तरफ से उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनका जो कुश्ती का कौशल्य है उनको सादर करने का इसी तीनों मैच पे उनको एक अच्छी सी मौका मिलेगा और इससे भारत को और भी महिला कुश्तीगर पैदा होगा। यहाँ रोहित जी ने बताया, हमारे जो महाराष्ट्र के आदरणीय शरद पवार जी है, उनके जो बर्थडे के बारे में इन्होंने स्पर्धा आयोजित की है। ये स्पर्धा, ये शरद पवार जी उन्होंने कौन से क्षेत्र में काम नहीं किया इस महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए, ये खोजना पड़ेगा। कुश्ती का समर्थन करते हुए कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। रयत संस्था के, रयत शिक्षण संस्था के अध्यक्ष होने के नाते सावित्रीबाई फुले उनको भी धन्यवाद व्यक्त करती है। और हम यही जानते हैं कि यहाँ के कर्जत वासियों, यहाँ की जो स्वच्छ सेना है, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है हर एक क्षेत्र में। लगता है कि ये कर्जत अब ये स्पर्धा के कारण और यहाँ हो रहा है काम के कारण भारत के नक्शा पे आ गया है। इसलिए और एक बार मैं कर्जत वासियों को, दादा पाटिल महाविद्यालय के उनकी नगरकर सर, भुजबल सर और उनकी जो पूरी टीम है सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी से, उनको धन्यवाद और उनका कौतुक करता हूं। त्यांचं मनापासून कौतुक करतो
आणि या स्पर्धेचं उद्घाटन झालं आहे असं मी जाहीर करतो. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब अंतिम चरण आ रहा है आभार ज्ञापन का. रैयत शिक्षण संस्था का दादा पाटिल महाविद्यालय कर्जत के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय जी नगरकर सर से अनुरोध है कि वे इस समारोह का आभार ज्ञापन करें. डॉक्टर संजय जी नगरकर. दादा पाटिल महाविद्यालय के प्रांगण में आए हुए पूरे भारत देश से आए हुए रेसलर्स जो है, उन्होंने, मैं जो बात कह रहा हूं इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए. पहली बार सब ने तहे दिल से तालियां बजाना है माननीय आमदार रोहित दादा पवार के लिए. सब ने तहे दिल से तालियां बजाना है. जो रेसलर्स है, आपको विनती है, आपने तहे दिल से उनके लिए तालियां बजाना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, respected dignitaries on the dais and online board. Today early the morning, while sharing with chill and existing breeze, I felt the heart-touching arrival of the esteemed guests across India in the beautiful and refreshing campus of the Rayat Shikshan Sanstha's Dada Patil Mahavidyalaya Karjat, district Ahmednagar. The campus to be ever energizing and mesmerizing. My team due to you only. So here I say, ए बातें हवा कुछ सुना आपने? ए बातें हवा कुछ सुना आपने? मेहमान जो हमारे घर आए हुए हैं, कल्याण बिछाना उनकी राहों पर, हम तो अपनी आंखें बिछाए हुए. कल्याण बिछाना उनकी राहों पर, हम तो अपनी आंखें बिछाए हुए. ये जो पूरे भारत देश से आए हुए हमारे रेसलर्स है, उनके कोच है, टीम मैनेजर्स है, हम करजत और जामखंड निवासी, उनके राहों पे हमारी आंखें बिछाए हुए थे. और 2 दिन से वो हम ये राहों पे आए, ये प्रांगण में आए और इसकी शोभा बढ़ाई. और आप सभी का धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ. आई हैव टू बी थैंकफुल, डीपली थैंकफुल द ऑथोरिटीज ऑफ द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी for their proactive organization in All India Inter-University Women's Wrestling Championship 2020-22-23, jointly organized by Rayat Shikshan Sanstha's Dada Patil Mahavidyalaya Karjat. At the outset, I am deeply thankful to respected Honorable Pro-Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune Universities, Dr. Sanjeev Sonone, and Honorable Dr. Deepak Ji Mane, Honorable Dr. Dattaji Mahadam, Director and Deputy Director of Sports Section Physical Education, Savitribai Phule Pune University, Pune. Because they give our college and our people the opportunity of this organization, the championship competition, and sparing time to inaugurate this wrestling championship and guiding the organizers and participants time to time. I also extend my thanks to Honorable Rohit Dada Pawar, MLA Karjat Jamkhed Constitution Assembly and General Bodies Member, Rayat Shikshan Sanstha, for this constant encouragement and valuable guidance. Really, Rohit Dada, her the efforts has put the life in the championship. Thank you. Thanks are due to Honorable Rajendra Ji Khatri, Observer All India University,
this wrestling championship for his in-time presence and guidance. My thanks are incomplete without the mention of Honorable Rajendra Katya Phalke, Member of Managing Council Race Shikshan Sanstha and Chairman of the College Development Committee, Dada Patil Mahavidyalaya, and also Ambadaji Pisar, General Body Sadasya, Bappaji Dhande, Member of the College Development Committee, Honorable Usha Tai Raut. I put my words of gratitude for all participants, wrestlers of various universities, team managers, coaches, referees, and all wrestling lovers across India for showing a positive concern for our invitation. Also, I specially thanks Honorable Usha Tai Raut, respected Vijunana, Rajendraji Gunda, Balasaheb Salunke, Namdev Bapu Raut, Rushikesh Dhande, Mahatma Gandhi's Vidyalayat Principal Sayyid Sir, respected Sayyid Sir, Gulab Rawji Tanpure, Rohini Tai Ghule, 5th international players Shabnam Ji Sheikh, Reshma Ji Mane, Swati Ji Shinde, Manisha Ji Divekar, Neha Chaugule, and all of the participants. Mr. Saste and his team stood on toes to make this event a grand success. Thank you, this team. Especially thanks are due to all social organizations in Karzat, journalists in Karzat and Jamkhed, all members of my College Alumni Association, Rotary Club, Tahsil Sports Club Association, Jamkhed and Karzat, Karzat Police Station, Civil Hospital Doctors Association, all wrestling lovers of Karzat and Jamkhed, and last but not least, my non-teaching staff and my dear students who work hard in various committees for the best organization of this event. Once again, deeply thankful each and everyone. Jai Hind, Jai Karan. Hello, thank you so much. Now it's time of national anthem. I would like to request all those present over here to stand on your places. सभी से अनुरोध है कि वे अपनी जगह पे खड़े रहें। परेड सावधान, राष्ट्रगीत शुरू करें। भारत भाग्य विधाता पंजाब